الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته رجلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے سوچ فکر اور اس کی دھیان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا ہی اس نے میرا دھیان کیا میں وہاں موجود ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل ہی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف بارش بر قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے ہاتھ بر قریب آتا ہے میں اس کے ایک پرش کے قریب آ جاتا ہوں، اور وہ اگر میری طرف چل کر بڑھتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ذکر کی فضیلت اور ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسی طریقے سے اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر دل میں یاد کیا تو اللہ بھی اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، کسی مجلس میں یاد کیا تو اللہ اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتے ہیں، اور کوئی اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان یحب ان یعلم منزلتہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام کتنا ہے، تو فرمایا اپنے دل میں اللہ کے مقام کو دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کا مقام کتنا ہے۔
جتنا اس کے دل میں مقام ہے اس سے زیادہ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت سے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کئی خصوصیات سے نوازتا ہے جن کا ذکر کیا جائے گا، لیکن ذکر سے جس طریقے سے دنیا میں کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ آلود چیز کو ختم کرنے کے لیے ریگمار کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے دل کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر ہر گھڑی فرمایا کرتے تھے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ سوتے وقت بھی اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر فرمائی۔ نماز دیکھیں، حد مقرر ہے، 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی۔ زکوٰۃ دیکھیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ روزے دیکھیں، سال میں 30 روزوں کو فرض قرار دیا۔ لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ ذکر کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا ذکر جتنا ممکن ہو سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ صحابہ وہ تھے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ صحابہ اللہ کا ذکر فرماتے، کھڑے ہوتے تو تب بھی اللہ کا ذکر فرماتے، بیٹھے ہوتے تو تب بھی اللہ کا ذکر فرماتے، اور اپنی کروٹوں کے بل جب سو جاتے، لیٹ جاتے، اپنی کروٹ کی بل پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال زندہ سی ہے، وہ دنیا میں زندہ ہے، اور فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ سی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، اللہ فرماتے ہیں جو زبان سے جملہ تمہارے نکلتا ہے اس جملے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ درخت اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے درخت، پتھر، حجر، شجر، نباتات، جمادات، ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جان سکتے، ان کے ذکر کو نہیں جان سکتے، وہ کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ درخت کھڑے قیام کی حالت میں جب تک سرسبز و شاداب ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اللہ اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان جب تک اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اللہ اس بندے کو اپنی یاد میں رکھتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں، کیوں؟ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی وجہ سے ایک بندہ اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی انسان کو نہیں بھولتے۔ یہ کیا مطلب کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا معنی یہ ہے
फज़कुरूनी बिद्दुआ अज़कुरकुम बिलअता, तुम मुझे याद करो दुआ के जरिए, मैं तुम्हें याद करूंगा अता के जरिए। तुमने दुआ के जरिए अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने अपनी अता तुम्हें देकर अल्लाह ने याद किया। और फरमाया फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो राहत के साथ, राहत में अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें राहत में याद करेगा। खुशी में तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह खुशी में तुमको याद करेगा। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरुल्लाह फ़लज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह का जिक्र दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी इंसान को काम आएगा। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जब अल्लाह जन्नत और जहन्नम के फैसला फरमा देंगे और अल्लाह जहन्नम में दो बंदे अल्लाह का जिक्र करेंगे, जो जिक्र करते हुए ये कहेंगे या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान, ये जिक्र करेगा। अल्लाह फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएंगे जिब्रील जाओ जहन्नम के फरिश्ते मालिक से ये कह दो कि जहन्नम की गहराइयों में एक बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, जहन्नम की गहराइयों से उसको निकाल के जन्नत में ले आओ। जब मालिक फरिश्ते को बताया जाएगा, मालिक फरिश्ता जहन्नम की गहराइयों में जाकर ढूंढने के बाद वापस आकर कहेगा अल्लाह वो जहन्नम में मौजूद नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे ऐ मालिक फरिश्ते, तू भी उसको ढूंढ न सका, मैंने जहन्नम की उन घाटियों में उसको दाखिल कर दिया, जहन्नम के उन गढ़ों में मैंने उसको दाखिल कर दिया जहां तक तू भी ना पहुंच सका। लेकिन जब वो जहन्नम की गहराइयों में गढ़ों में उसने मुझे याद करना शुरू किया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने उस जहन्नम के गढ़ों से उसकी आवाज को पुकार को सुन लिया और उसकी पुकार थी या हन्नान या मन्नान। इधर कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जब उन्होंने उस जहन्नम में रहने वाले शख्स ने जहन्नम की गहराइयों में अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने जहन्नम की गहराइयों से उसको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए ये रमजानुल मुबारक का महीना, जिस महीने में मेरे लिए और आपके लिए जबान अल्लाह के जिक्र से तर होगी। वैसे मामूल है अल्लाह की अता बहुत ज्यादा है, आम हालात में अल्लाह सवाब बंदे को कितना देते हैं। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा सूरतुल ज़िलज़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इस सूरत की तिलावत फरमाएगा। हदीस पाक में आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस मुसलमान को आधे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह कितने मेहरबान हैं। एक छोटी सी सूरत, इंतहाई मुख्तसर सूरत, 1 मिनट में इंसान मुकम्मल पढ़ ले, उस सूरत के पढ़ने पे आधे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नामा अमाल में लिख दिया। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह को जब याद किया गया, अता अल्लाह की इतनी थी कि अल्लाह ने आधे कुरान का सवाब दे दिया। ये आम हालात की बात है। अगर रमजान मुबारक में कोई बंदा पढ़ता है तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है, अल्लाह इसकी फजीलत को 4 चांद लगा देते हैं। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून इसकी तिलावत करे, एक मर्तबा पढ़ने वाले मुसलमान को अल्लाह रुबो कुरान, चौथाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। और फरमाया अगर कोई मुसलमान सूरतुल इखलास की तिलावत करे, एक मुख्तसर तरीन सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐसी सूरत की तिलावत पर अल्लाह आसमान से इतने मेहरबान होते हैं, उस मुसलमान के नामे अमाल में अल्लाह ताला एक खुलस कुरान, एक तिहाई कुरान मजीद का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। इसलिए अल्लाह को हदीस पाक में फरमाते हैं, अल्लाह ने इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ये इरशाद फरमाया अगर बंदा मेरी तरफ वो चल कर आता है मैं दौड़ कर मुतवज्जे होता हूँ
और फरमाया एक बालिश आता है, मैं 2 बालिश उसकी तरफ उसकी तरफ आ जाता हूं। और फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो। हमारी जिंदगी 24 घंटे की अल्लाह के जिक्र से गुजरने वाली बन जाए। रात को सोते वक्त एक मुसलमान वो सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ के और सूरतुल मुल्क पढ़ के जब सोएगा, अल्लाह उस मुसलमान की पूरी रात इबादत में लिख देंगे। क्यों? इसलिए कि नबी के तरीके पे सोना ये अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह उस मुसलमान की पूरी रात इबादत में लिख देंगे। बाजार में आपका जाना भी होता है, मेरा जाना भी होता है। हर मुसलमान इस बात का एहतमाम करे। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, जो बंदा भी बाजार में दाखिल होते वक्त चौथे कलमे का विर्द करे, चौथे कलमे को पढ़ ले, अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होते हैं 10 लाख नेकियां उस मुसलमान के नाम लिख दी जाती है। अल्लाह गवाह है। आप इस बात को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते, मैं इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया की देने वाले लोग थोड़ी चीजें देते हैं, इतनी चीजें नहीं दे सकते। वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो बादशाह है, वो बादशाह इतना ज्यादा अता करता है कि एक चौथे कलमे की विर्द की वजह से अल्लाह 10 लाख नेकियां लिख देते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस मुसलमान के 10 लाख गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और फरमाया 10 लाख दराजात को बुलंद कर देते हैं जो बंदा चौथे कलमे का विर्द करता है। हजरत कुतैबा रज़ी अल्लाह फरमाते रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जब से मैंने ये हदीस मुबारक सुनी, रोजाना मेरा बाजार का मामूल नहीं था, लेकिन इस हदीस पे अमल करने की वजह से, सवाब को हासिल करने की वजह से मैं बाजार का चक्कर लगाया करता था ताकि ये फजीलत मुझसे हासिल हो जाए। जिक्र से क्या फायदे मिलते हैं? याद रखें, जिक्र के 5 फायदे हर मुसलमान को अल्लाह अता फरमाते हैं। सबसे पहला फायदा यह होता है जिक्र करने वाले को अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है। अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाते हैं जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है। मैं और आप जिक्र करेंगे तो अल्लाह मुझसे राजी, आपसे राजी, क्योंकि हदीस आपके सामने कि अल्लाह फरमाते हैं मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूंगा। दूसरा फायदा यह होता है जब अल्लाह की रजा आ जाती है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई काम इंसान नहीं कर सकता, कोई नेकी नहीं कर सकता। अल्लाह जिक्र करने की वजह से नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। तीसरा फायदा यह होता है जब नेकी करने लग जाए वो गुनाह से बच जाता है, वो शैतान से महफूज हो जाता है। जिक्र करने वाले इंसान को अल्लाह शैतान से महफूज फरमा देते हैं। चौथा फायदा क्या होता है? जब नेकी के साथ वो शैतान से महफूज हो जाए, फिर अल्लाह ताला उस मुसलमान के दिल में रिकत को पैदा कर देते हैं, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो जाता है। ये चौथा फायदा उस मुसलमान को हासिल होता है। 5वां फायदा जिक्र करने से क्या होता है? 5वां फायदा जिक्र करने से यह होता है जो मुसलमान जिक्र करता है, अल्लाह उस मुसलमान के जिक्र करने की वजह से, अल्लाह उस मुसलमान के जिक्र करने की वजह से उसको गुनाहों से महफूज फरमा देते हैं। जब अल्लाह का जिक्र किया तो जिक्र करने से अल्लाह की रजा हासिल हुई, रजा से बाद अल्लाह ने उसको नेकी करने की तौफीक दी, नेकी के बाद अल्लाह ने उसको शैतान से महफूज कर दिया। जब वो शैतान से महफूज हुआ, अल्लाह ने उसके दिल को नरम कर दिया, और जब दिल नरम हो जाए, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह उस मुसलमान को गुनाहों से महफूज फरमा देते हैं। समझ आई एक ऐसी चीज जिस चीज का नाम जिक्र है, अगर जबान पे जिक्र आ जाए, अल्लाह 5 फायदों के साथ साथ गुनाहों से महफूज फरमा देते हैं। और हदीस पाक में बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, 2 कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं, जबान पे बड़े हल्के हैं, जबान पे बड़े आसानी से अदा हो जाते हैं, लेकिन मीज़ान अदल क़यामत के दिन जब अल्लाह तराजू को रखेंगे, उस दिन तराजू में बड़े भारी होंगे। वो कौन से 2 कलमे हैं? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे बड़े महबूब हैं।
मुहद्दिसीन ने इस रवायत के तहत ये बात भी लिखी कि जहां पर अल्लाह ने ये फरमाया दो कलमे बड़े महबूब हैं, वहां पर ये भी इससे मुराद है कि अल्लाह को वो बंदा बड़ा महबूब है जिस बंदे की जबान से ये कलमे जारी होते हैं। मेरी जबान से, आपकी जबान से, जिस मुसलमान की जबान से ये कलमे जारी होंगे, अल्लाह के हाँ वो बंदा बड़ा महबूब होगा। क्योंकि जब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह उस मुसलमान को गुनाहों से महफूज फरमा देते हैं। समझ आई एक ऐसी चीज जिस चीज का नाम जिक्र है, अगर जबान पे जिक्र आ जाए, अल्लाह 5 फायदों के साथ साथ गुनाहों से महफूज फरमा देते हैं। और हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, 2 कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं, जबान पे बड़े हल्के हैं, जबान पे बड़े आसानी से अदा हो जाते हैं, लेकिन मीज़ान अदल क़यामत के दिन जब अल्लाह तराजू को रखेंगे, उस दिन तराजू में बड़े भारी होंगे। वो कौन से 2 कलमे हैं? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे बड़े महबूब हैं। मुहद्दिसीन ने इस रवायत के तहत ये बात भी लिखी कि जहां पर अल्लाह ने ये फरमाया 2 कलमे बड़े महबूब हैं, वहां पर ये भी इससे मुराद है कि अल्लाह को वो बंदा बड़ा महबूब है जिस बंदे की जबान से ये कलमे जारी होते हैं। मेरी जबान से, आपकी जबान से, जिस मुसलमान की जबान से ये कलमे जारी होंगे, अल्लाह के हाँ वो बंदा बड़ा महबूब होगा। क्योंकि जब अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कहता है, अल्लाह आसमान और जमीन के दरमियान के जो दरवाजे होते हैं ये खोल देते हैं, और अल्लाह अकबर कहने की वजह से अल्लाह जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है, उस खला भरकर उस इंसान के नाम अमाल में नेकियों को लिख देते हैं। और जो बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, हदीस में आता है इसका सवाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता कि अल्लाह ने इस पर कितना सवाब रखा हुआ है। खुलासा दर्ज का ये निकला कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं मैं बंदे के गुमान के मुताबिक फैसले करता हूं। अगर वो मेरे तरफ आता है मैं उसकी तरफ आता हूं, और अगर वो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूं। वो जिक्र मेरा मजलिस में करता है, मैं फरिश्तों की मजलिस में उसका जिक्र करता हूं। और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूं। और अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम याद करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। तुम तो भूल सकते हो लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ रमजान मुबारक में और आम दिनों में अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मन की तौफीक अता।